Yes. So, good morning to all of you. Last bench, now be with me. Let us start with our discussion on the topic of retirement of a partner. We have completed admission and we are going to start with retirement. Before I start with the lecture, सीए फाउंडेशन में रैंक लाने का है और सीए इंटर में भी रैंक लाने का है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? यू ऑलरेडी नो द प्राइस. आई होप यू नो द प्राइस. तो वो लेके जाने का प्राइस. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हम लोग उतावले हैं प्राइस देने के लिए, आप लोग उतावले होने चाहिए प्राइस लेने के लिए. If you are not interested in that, then it is okay. Then it's a different story. But please ensure that you are getting 100% scholarship based on the proof that you are a scholar. Okay? And the proof of scholarship should be in the exam which you are appearing, not in the exam which you have appeared in the past. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर मुझे 10वीं में इतना मार्क मिला था इसलिए मुझे आप स्कॉलरशिप दो, उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है. मैं सीए फाउंडेशन करके दिखाता हूँ और रैंक लाके दिखाता हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप दो. तो दैट बिकम्स अ डिजर्विंग थिंग in relation to the course which you have joined as compared to the course which you have already passed. Are you getting the point? So all the best for your CA foundation, all the best for your CA inter, and let us go for now studies of retirement of a partner. So what is the meaning of retirement of a partner? Existing partnership आहे and existing partnership मध्ये कोणते existing partner म्हणतात बाजार मला कंटाळा आला, मी थकलो किंवा मग मे बी माझे लाईफचे प्लॅन चेंज झाले आणि the old plan of continuing with the partnership probably may not be that fruitful for me. In that case, the partner desires to retire. Now, remember that partnership is a relationship. Since it's a relationship, it is obvious that this relationship is going to be broken. On account of retirement. And disadvantages of partnership are that when a new partner is required to be admitted, it is necessary that all the existing partners, all, not majority, all the existing partners must approve the admission of such new partner. This is one difficulty in case of admission. So if there are 4 partners and they are willing to take 5th partner as an incoming partner of the partnership group, but out of 4, 3 are accepting the admission and 1 is not accepting the admission, then the 5th partner cannot be admitted. It is necessary that the admission should be unanimous. Okay, this is the problem with admission. In case of an artificial person, like that of a joint stock company, if you want to accommodate new shareholders, you are not required to take permission from the old shareholders. There are some points like right shares. आपको इश्यू ऑफ शेयर सिखाया क्या? 12वीं के लिए अभी तक नहीं सिखाया. ओके, तो उसके अंदर एक पॉइंट आएगा बाद में राइट शेयर. 12वीं में भी आएगा, सीए फाउंडेशन में आएगा, सीए इंटर में आएगा. सीए इंटर में तो हमने को कॉर्पोरेट लॉ सीखने का, उसके विषय का लॉजिक सीखने का. थोड़ा सा लॉजिक बता के रखता हूँ कि existing shareholders right to control the company should not be diluted. So if an existing company which is having existing shareholders is interested in making fresh issue, that means accommodating new shareholders, then the company law states that this thing can be done. इसको कुछ problem नहीं. There is no need that people have to be taking permission from the existing shareholders कि हम लोग ऐसा करें कि ना करें. Permission का झंझट नहीं. बाकी के existing shareholders से बोला नहीं हमको नहीं चाहिए, उसका भी टेंशन नहीं. They cannot say that particularly. But company को एक condition रहता है that company will have to issue right shares first. What is the meaning of right shares? Company will have to first of all offer these fresh shares to the existing shareholders, stating that अगर आपको चाहिए तो आप shares purchase कर लो, so that you were the owners, you were the controllers, and after fresh issue, some new people will come and sit next to you in the chair of shareholders, which may dilute your authority over the company's control. If you don't want to dilute authority, we are okay with that. But in that case, you'll have to buy the new shares which we are issuing to the general public. तो जनरल पब्लिक को इशू करने के पहले हम आपको शेयर्स इशू करते हैं. आपने पैसा दिया तो अच्छी बात, आपको शेयर्स इशू करेंगे तो आपके पास शेयर्स बढ़ जाएंगे, कंपनी के पास कैश आ जाएगी, आपके पास का शेयर्स का या फिर कंपनी के ऊपर का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा. यू वर द कंट्रोलर्स, यू विल कंटिन्यू टू रिमेन द कंट्रोलर्स. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? That is considered as right issue. But in case of an artificial person, the most important thing is that there is no compulsion that the existing shareholders all must approve the fresh issue. Existing shareholders may approve, may not approve. That is not required. In fact, their approval is not sought. Only thing is they are given a chance to purchase the existing shares, to purchase the fresh shares, which the company is willing to issue to the general public. If they say no, we don't want to purchase, then it's okay. Company is free to issue to the general public. Company can get money from the general public. General public can become shareholders.
So the existing shareholders will continue to remain shareholders, and new shareholders will also sit next to them, and all of them will control the company. But most important, no compulsion of unanimous decision कि बाबा इसको हाँ बोलने का कि ना बोलने. That is for artificial person. But in case of a partnership, it's a relationship. It's not an artificial person. So we specify that जब तक सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे, तब तक नए आदमी को admit नहीं करेंगे. Then comes the second point. In case of company, if you are a shareholder and you are not finding that holding the shares of the company is going along with your own plan of future, you are free to sell the shares. You are free to sell the shares. In case of a private limited company, you are not directly free to sell the shares. You are able to talk to the company that मुझे मेरा shares बेचने का है. Company cannot hold on to you. Company ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं shares बेचने का नहीं है. Company बोलेगी ठीक है आपको बेचने का तो बेच. Private limited company, so there is some restriction on transferability of shares, but it does not mean that you can't transfer your shares. If you are finding that बस हो गया मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा था, कैश यहाँ पे डाल के रखा था, ये कंपनी इतने साल तक चल रहा था, मुझे डिविडेंड दे रहा था, लेकिन अभी मुझे इस कंपनी का शेयर्स पकड़ के रखने में इंटरेस्ट नहीं है, वो जो भी कुछ मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट शेयर्स के अंदर अटका हुआ है वो मुझे लिक्विडेट करवा के लेने का है, एंड दैट मनी आई कैन इन्वेस्ट maybe in some real estate, maybe in some other company shares, maybe in fixed deposit, maybe I'll use it for the education of my kids, maybe I'll use it for the purpose of renovation of my house, whatever the case may be. So can you sell the shares? Yes. The only thing is that you are going to talk to your company first. The company will specify to whom to sell the shares. But the most important point, company will not give money back to you. Company will only specify to whom to sell the shares. इसका मतलब तुम्हारे पास का शेयर्स चला जाएगा, तुमको उसके बदले में पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये पैसा कंपनी के पॉकेट से नहीं निकलेगा. ये पैसा किसके पॉकेट से निकलेगा? न्यू शेयर होल्डर के पॉकेट से निकलेगा. मतलब कंपनी का जो व्हील है कैपिटल का, बिजनेस चालू करने के टाइम ऑल द existing shareholders or all the fresh shareholders have given money to the company. Company has taken money from the shareholders. Company has put it into land, building, plant, machinery, furniture, vehicles, stock, and so many other assets. And that wheel is going on now. And one of the shareholders is willing to get out of the company now. So he wants his capital back. इसका मतलब कंपनी को लैंड बेचने का जरूरत नहीं, बिल्डिंग बेचने का जरूरत नहीं, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, स्टॉक कुछ बेचने का जरूरत नहीं. ये व्हील चल रहा है, जैसा उसका आकार है, जैसा उसका साइज है, वो कंटिन्यू रहेगा. That wheel will not be destroyed. That wheel will not be shrunk. That wheel will not be sold off. Cash will not be raised from the operations of the company, and that will not be paid to the shareholder. कंपनी बोलेगी ये चलता है, ये चलते रहने, इसको हाथ मत लगा. तुमको पैसा चाहिए ना मिलेगा, बट हम नहीं देंगे. तुमको पैसा कौन देगा? जिसको कंपनी का शेयर्स परचेस करने में इंटरेस्ट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा शेयर होल्डर बनेगा तो हमको चलेगा, ऐसे आदमी को हम लोग बोलेंगे कि बाबा तू इसका शेयर्स परचेस कर. सो कंपनीज व्हील कंटिन्यूज टू रोटेट प्रॉपर्ली. कंपनी डज नॉट गेट डिस्टर्ब. इंस्टेड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इफ इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, then you are not even required to ask the company कि भैया आप बोलो मुझे शेयर बेचने का है, मुझे पैसा चाहिए है, पैसा मुझे शायद मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए चाहिए, शायद मेरे बेटी के शादी के लिए शादी के लिए चाहिए, बेटी के शादी के लिए चाहिए, शायद मुझे कुछ रिटायरमेंट के लिए चाहिए, कुछ घर कुछ भी मुझे पैसा चाहिए है, तो मैं शेयर बेचूं क्या? ये पूछने की भी जरूरत नहीं. इसको बेचूं कि उसको बेचूं, ये भी पूछने की जरूरत नहीं. तुमको जिसको चाहिए उसको शेयर बेच दो और पैसा ले लो. कंपनी कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम सेलिंग इट टू एनीबडी. In case of a private limited company, company at least puts a right that company will have to approve to whom you are selling. कंपनी खुद के पॉकेट से तो पैसा देगी नहीं, लेकिन जिसके पॉकेट से पैसा मिलने वाला है वो आदमी कंपनी को चलेगा कि नहीं चलेगा कंपनी बताती है. दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो कंपनी क्या बोलती है, जिसको बेचने का तो बेच, हमको पूछ भी मत, डायरेक्टली बेचो तो भी चलेगा, हमको सिर्फ बता दे कि तूने शेयर इसको बेच दिया है, हम लोग शेयर रजिस्टर में, शेयर होल्डर्स रजिस्टर में तेरा नाम कट कर देंगे, उसका नाम रख देंगे, बस काम खत्म. वी विल नॉट आस्क यू व्हाई आर यू सेलिंग टू दिस फर्म. तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूं. दैट इज कंसीडर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एंड लास्ट टाइप ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड एज पब्लिक लिमिटेड एंड दे आर publicly traded companies. मतलब they are listed on a recognized stock exchange. Remember, every public limited company is not listed on a recognized stock exchange. Stock exchange is a different institution and company register is a different institution. सगळ्यांना कळते मी काय बोलतो ते. Stock exchange is a different institution and company register is a different institution. Your company is a private limited company, तो तुम लोग कंपनी रजिस्टर के पास जाने वाले हो. वो तुमको जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा नहीं, तब तक तुम आगे जा ही नहीं सकते. तो को समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. अगर तुम्हारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो भी तुमको कंपनी रजिस्टर के जाना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ऊपर से वो पब्लिकली ट्रेडेड है तो तुमको कंपनी रजिस्टर के पास भी जाना पड़ेगा, और
स्टॉक एक्सचेंज के बाद भी जाना पड़ेगा, फिर तुम चूज करो कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे जाने का है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने का है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने का है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने का, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उधर लिस्टिंग का तुमको अलग से फीस भरना पड़ता है। दे विल मेंटेन द डेटा ऑफ योर कंपनी कि तुम्हारी कंपनी का शेयर्स किसके पास है, कैसे किसने किसको बेचा, कितना किनको बेचा, उसका भाव कितना बढ़ गया गिर गया, सब वो भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। समझ रहे कैसे बोल रहा हूँ? तो वो वाला अगर रहेगा तो झंझट ही खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू द ब्रोकर डायरेक्टली एंड यू आर गोइंग टू जस्ट स्पेसिफाई दैट मेरा शेयर बेच दो। तो तुमको दूसरे शेयर होल्डर को ढूंढने का भी जरूरत नहीं है कि किसको चाहिए किसको चाहिए किसको। तुम बोलोगे ब्रोकर को बोल देना कि मुझे इतने बेचने का, काम खत्म हो गया। ब्रोकर देख लेगा क्या करने का, बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म, देयर इज अ मार्केट व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर दैट। But take the case of private limited company, take the case of public limited company which is normal, not listed on a recognized stock exchange, or a public limited company which is also recognized on a, which is listed also on a recognized stock exchange. तीनों केसेस में पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो मिलता है वो कंपनी के पॉकेट से नहीं निकलता है, वो किसके पॉकेट से निकलता है? न्यू शेयर होल्डर के पॉकेट से निकलता है। कैसे बोल रहा हूं? तो कंपनी डजंट गेट डिस्टर्ब ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। I repeat, company doesn't get disturbed on account of exit of an existing shareholder. In fact, this feature of company is introduced because of the disadvantage of partnership firm. In case of a partnership firm, it is not treated as an artificial person. In case of a partnership firm, it is treated as a relationship. So in a relationship, if one person is getting out, then the other person who is interested in continuing will have to pay out of his own pocket. खुद के पॉकेट से पे कैसे करेगा? तो ठीक है, फर्म के पॉकेट से पे करो सर, लेकिन फर्म में तो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, पैसा अटक गया। हम कुछ भी करो लेकिन हमको पैसा वापस, तो शायद तुमको लैंड बेचनी पड़ेगी सर, लेकिन वो जाएगा तो इधर लैंड चली जाएगी तो फर्म कैसे कंटिन्यू करेगी? दैट इज योर प्रॉब्लम, बट इट इज नेसेसरी दैट द फर्म विल हैव टू पे। सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बिकॉज इट्स ए रिलेशनशिप। एकदम सिंपल एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप इज मैरिज रिलेशनशिप। इन केस ऑफ अ मैरिज, इफ देयर इज अ डिवोर्स, इन दैट केस द पर्सन हु इज लिविंग, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Especially wife who is supposed to be dependent on the husband, if it can be proved that she is dependent on the husband and the husband wants to quit or the wife wants to quit, the husband will have to pay alimony. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point what I am trying to specify? तो वो मैरिज रिलेशनशिप है, ये बिजनेस रिलेशनशिप है, अल्टीमेटली रिलेशनशिप है। तो जो रुकेगा उसको पैसा देना पड़ेगा, जो जाएगा वो पैसा लेके जाएगा। तो जाने वाला बोलेगा मुझे एक साथ पैसा दे दो, या फिर जाने वाला बोलेगा ठीक है एक साथ पैसा दूंगा तो आपका पूरा बिजनेस टूट जाएगा, मुझे बिजनेस तोड़ने में इंटरेस्ट नहीं, मुझे खुद रिटायर होने में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे धीरे धीरे पैसा दिया तो भी चलेगा, लेकिन मेरा अकाउंट मेंटेन करो, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन पैसा वापस करना पड़ेगा। डोंट टेल मी दैट सर हम आपके जगह पे किसी और करेंगे उसके पास से पैसा लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इन केस ऑफ अ रिलेशनशिप यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट अ पर्सन, इसके जगह पे इसको ले लिया और वो सामने वाले को पैसा दे देगा। नो, दैट इज नॉट अलाउड। वी आर कंसिडरिंग दैट रिलेशनशिप है, मेरा रिलेशनशिप किसकी वजह से? फर्म की वजह से। तो मैं फर्म में से बाहर निकल रहा हूँ, फर्म ने मुझे पैसा वापस करना चाहिए। मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर फर्म को तकलीफ नहीं देना चाहिए ऐसा मुझे लगता रहेगा, फिर फर्म के पास इमीडिएट कैश अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इन दैट केस एज अ गुडविल जेस्चर आई माइट टेल द फर्म ठीक है मुझे एक साथ पैसा नहीं दिया तो भी चलेगा, मुझे अगले 5 साल में हर 6 महीने का थोड़ा पैसा दो। फिर ऑब्वियसली एक साथ पैसा नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे पैसा मिल रहा है, मतलब साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So there are two different situations which can happen. This doesn't happen in case of admission. कि एडमिशन के टाइम हम उसको बोल रहे तू अभी कैपिटल लेके मत आ, हम तेरे पर लोन चढ़ाएंगे, तू धीरे धीरे पैसा दे, दैट इज नॉट द केस। एडमिशन के टाइम उसने पैसा पूरा देना पड़ता है, बिकॉज अपना एक व्हील चालू है, उस व्हील के अंदर हम इंजेक्शन डालते रहते हैं, तो व्हील बड़ा होने वाला रहता है, उसके घर से पैसा आने वाला रहता है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ अपना व्हील चालू है, और अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, फर्म ने उसको पैसा वापस देने का रहेगा, तो व्हील के अंदर इंजेक्शन नहीं आएगा, बल्कि व्हील के अंदर से लीकेज हो जाएगा, तो व्हील श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अरे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो छोटा होते होते शायद वो टूट भी सकता। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को डिफिकल्टी आना चाहिए। देयर आर 4 पार्टनर्स A, B, C and D, and D wants to retire, ABC wants to continue। तो D के रिटायरमेंट की वजह से ABC का बिजनेस करने का ताकत टूटना नहीं चाहिए। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसके लिए वहां पे लोन का कैपेसिटी आ सकता है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट व्हिच हैपेंस ओनली इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, इट डजंट हैपन इन केस ऑफ एडमिशन। दिस इज एन एडजस्टमेंट व्हिच कैन हैपन फॉर रिटायरमेंट और डेथ। रीजन क्या है? We are talking about partnership. Partnership is not an artificial person. Partnership is a relationship. In a relationship, the person who quits demands the money which he has invested in the relationship out of the relationship itself. So those who are continuing with the relationship, they have the responsibility of paying. In that case, the firm which is created out of the relationship may get destroyed. The firm which is created out of relationship may get a setback. To avoid the setback, we may introduce an adjustment of loan. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Got the idea?
and then it is also going to create one more special entity, which probably you must have studied in 12th standard. That is called as joint life policy. Yes. याद है क्या सब? Yes. तो ऐसा पॉलिसी सुना है? 12वीं अकाउंट्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जब एडजस्टमेंट आएगा तो डिटेल में डिस्कशन करूंगा. आज अपने को सिर्फ पहला पार्ट सीखने का है, दैट इज रेशियोज. इन केस ऑफ एडमिशन हम लोग 3 लोग बैठे हुए थे, चौथा आएगा तो हमारी जगह कम हो जाएगी, मतलब अपने को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस. इन केस ऑफ रिटायरमेंट हम लोग 3 लोग बैठे थे, एक जा रहा है तो हमारी जगह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. दैट मींस वी आर गोइंग टू गेट गेन, and the person who gets the gain will have to give the goodwill to the person who is retiring. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आज अपने को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम करना है, मतलब एक ही टाइप का प्रॉब्लम करना है, सिर्फ कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियोज एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज. उसमें एक प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है, बाकी प्रॉब्लम तो फटाफट आ सकते हैं. क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट. Shall I go ahead now? Everybody is with me? Chalo, very good. Alok, Bhaskar and Chetan are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Calculate new ratio if Alok retires और भास्कर रिटायर्स और चेतन रिटायर्स. इतना ही बोल कर रखे, बाकी कुछ झंझट है ही नहीं. तो हम क्या बोलेंगे, कोई जा रहा है और बाकी के लोग क्या करने वाले हैं ये नहीं बोला रहेगा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जैसा वो पहले एंजॉय करते थे वैसा ही बाद में एंजॉय करेंगे. तो इफ द रेशियो इज ए बी सी के बीच का रेशियो 3:2:1 मिल रहा है क्या सबको? एंड इफ ए इज रिटायरिंग दैट मींस 3 इज गोइंग आउट, दैट मींस 2:1 इज रिमेनिंग. सो द रेशियो व्हिच विल रिमेन विल बी 2:1. क्या रे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? देन उन्होंने अपने को क्या पूछा है, गेन रेशियो पूछा है कि सिर्फ न्यू रेशियो पूछा है? न्यू रेशियो पूछा हुआ है, सो नो प्रॉब्लम. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज बी इज रिटायरिंग, तो क्या रेशियो बचेगा बोलो? 3:1. एंड इफ सी इज रिटायरिंग देन द रेशियो वुड बी 3:2. सगळ्यांना कळतंय का रे? चला पटापट पूर्ण करून टाका. चला बिगी बिगी, shall I go ahead? Yes. कठीण प्रॉब्लेम करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ असला पाहिजे, पटापट पूर्ण करा, टाइमपास करू नका. Shall I go ahead now? Yes. Next question. A, B, C, Arav, Banta and Chunmun are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Arav retires. Arav मतलब कौन? पहला वाला हीरो रिटायर हो रहा है, मतलब 3 वाला रिटायर हो रहा है. And his share is taken over by remaining partners as follows. Banta takes 2/6 from Arav and Chunmun takes 1/6 from Arav. Calculate the new ratio. So they have clearly told you कि आरव का 3 जो था
वो 3 किस में से था? 6 में से था। सर आपको कैसे समझा? बिकॉज 3:2:1 है। 3 टुकड़े आरव को, 2 टुकड़े बंता को और 3 टुकड़े सॉरी 1 टुकड़ा चुनमुन को, तो 3 और 2 और 1 मतलब हो गया 6 टुकड़े। 6 में से 3 दिए थे आरव को, तो मतलब आरव का रेशो था 3 मतलब 3/6। वो 3/6 में से उन्होंने बोल के रखा है कि आरव विल गिव 2/6 टू बंता एंड 1/6 टू आरव, सॉरी 1/6 टू चुनमुन। सापड़ते कैसे करना? तो इसका मतलब अपने को उन्होंने जो आरव का सैक्रिफाइस दिया है वो आरव के रेशो के हिसाब से दिया हुआ है कि वो फॉर्म के रेशो के हिसाब से दिया हुआ है। मतलब ज्यादा कुछ झंझट है ही नहीं। अपने को क्या कैलकुलेट करने का है? यू आर इक्वल टू कैलकुलेट न्यू रेशो। तो मैं बोलूंगा इसका मतलब न्यू रेशो किसके बीच में है? आरव तो गायब है, मतलब बंता और चुनमुन के बीच में है। तो बंता का रेशो क्या था? 2/6 था। उसके अंदर और कितना ऐड करना पड़ेगा? 2/6 ऐड करना पड़ेगा। सो 2/6 प्लस 2/6 मतलब, एंड चुनमुन का कितना था? 1/6 था। उसमें फिर से कितना ऐड करना पड़ेगा? 1/6। तो यहाँ पे पहले क्या बोलना पड़ेगा? दैट द प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी गिवन गेन रेशियो इन रिलेशन टू द फॉर्म. कार्य करता का मी काय म्हणतो ते? The problem has already given the gain made by continuing partners in relation to firm. Therefore, comma, there is no need to calculate gain ratio. Ratio नहीं, ratio. सगळ्यांना कळते का रे बाबांनो आणि बेबींनो? का नाही कळलं? नहीं कळलं तर सांगा. ओके, तो फिर अभी क्या बोलना पड़ेगा? फिर अपना हीरो कौन है? बंता. Banta's new share is equal to old ratio plus gain. Is equal to ओल्ड रेशियो क्या था उसका? 2/6 प्लस उसका गेन रेशियो क्या है? 2/6 मतलब हो जाएगा क्या? 4/6. नेक्स्ट कौन है? चुनमुन. चुनमुन्स न्यू शेयर is equal to old ratio plus gain is equal to 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6. अब मेरे पास जगह जरा कम पड़ रहा है, इसके लिए मैं साइड में लिख रहा हूं, तुम उसके नीचे लिखने वाले हो. Therefore, new ratio between Banta and Chunmun is equal to 4:2, or you can also say 6:1. गिटार अच्छा बजाते रहे. तो होटल कैलिफोर्निया किसने सिलेक्ट किया था गाना? पिताजी के टाइम का गाना है सोनू. होटल कैलिफोर्निया गाना पिताजी के टाइम का है वो. मेरे टाइम का है, मुझे याद है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नथिंग स्पेशल अबाउट रिटायरमेंट, डोंट वरी. चलिए, शैल आई गो अहेड नाउ? Yes. चला बिगी बिगी झालंय का हो मॅडम? गुड. आपको शायद मैडम ने बोला रहेगा, और मैडम ने कि सैटरडे को उनका लेक्चर है. मुझे मैडम ने सैटरडे को बोला.
इसलिए मैं लेक्चर लेने वाला नहीं हूँ। सैटरडे को कैंसिल किया मैडम ने, संडे को रखा हुआ है, बट मैंने सैटरडे को मेरा अलग जगह पे प्लान करके रखा। फिर मैडम ने मुझे बोला था कि आप आपका लेक्चर मुझे दोगे क्या करके। ओके ठीक है, फिर सैटरडे को आप फ्री रहो, नो प्रॉब्लम। बट ये सैटरडे को फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले सैटरडे को फ्री है। अगर मुझे मालूम रहता था कि मैडम ने सैटरडे का कैंसिल किया तो मैं रखने वाला था। अभी मुझे तुमने बोला तो समझा कि मैडम ने कैंसिल किया। 12वीं का एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू इट नाइसली, बट यू आर सीए स्टूडेंट्स, समझे क्या? तो बड़ा काम करने का ख्वाब देख के छोटा छोटा काम नहीं करने का, बड़ा काम करने का है तो बड़ा स्टेमिना रखने का और उसके हिसाब से स्टेमिना बढ़ाने का कोशिश करने का। इफ यू वोंट ट्राई टू पुश योर लिमिट्स, you will not be in a position to improve your stamina. That is necessary. Okay? तो शायद मुझ पे गुस्सा आएगा कि क्या आनंद सर को समझ में आता नहीं, हम लोग 12वीं के बच्चे नन्ही सी जान क्या क्या करेंगे वगैरह करके। नो प्रॉब्लम, घर पे जाओ, टॉयलेट में जाके बैठो, मेरे नाम से कागज लिखो, उसके बाद 10-12 गाली लिखो, टॉयलेट में फ्लश कर दो, और बाहर आके चुपचाप से मैं बोलूंगा वैसा पढ़ाई करो। क्लियर? बट मेरा बात सुनने का काम खत्म। Shall I go ahead now? Okay, Deepu, Tasha and Honey. DTH, direct to home, देखो DTH. Deepu, Tasha and Honey are partners, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Tasha retires, म्हणजे मधला हीरो रिटायर झाला रे बाबा लोग. ओके, सो 3:2:1 में से 2 गायब हो रहा है. मिला क्या आपको सबको? Tasha retires and his share was acquired by Deepu and Honey in the ratio of 2:1. तर जरा गडबड झाली. 2:1 ची टोटल 3 होते. जुन्या पार्टनरशिप फॉर्मचा जो रेशो होता तो 3:2:1 होता, म्हणजे त्याची टोटलिंग 6 होती. जसं मगाशी आपण जेव्हा आरव बंता आणि चुनमुन बरोबर खेळत होतो तेव्हा त्यांची काय स्पेशालिटी होती? त्यांचा जुना रेशो 6 बद्दलचा होता आणि त्याच्यापैकी आरवचा रेशो बंता आणि चुनमुनने जो घेतलेला आहे त्याची इन्फॉर्मेशन 2/6 आणि 1/6 दिलेली होती. म्हणजे द गेन मेड बाय द पार्टनर्स वॉज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट और फर्म्स टोटल शेयर. Whereas here you will find that if the firm's total share is 6, 3:1, so the gain made by Deepu and Honey is given in the ratio of 2:1. That means it is not expressed in terms of firm. So it is necessary for us to first of all convert it in terms of firm. तो मुझे बोलना पड़ेगा 2:1 मतलब 2/3 and 1/3. ये 2/3 and 1/3 किसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा? पहले ताशा के शेयर पे अप्लाई करना पड़ेगा. ताशा का शेयर कितना है? 2/6. तो 2/6 का 2/3 and 2/6 का 1/3. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? That is the gain which is going to be made by Deepu and Honey. Is it clear to all of you? अरे कुछ तो बोलो. चलो let us start. क्या बोल रहे हैं वो? The problem has not given the gain made by continuing partners in relation to the firm. Therefore, it is necessary to calculate gain by each partner in relation to firm. Full stop. तो बोलना पड़ेगा मुझे Tasha's share gained by Deepu is equal to Tasha's share into Tasha's sacrifice in favor of Deepu. क्या रे समझ क्या? is equal to 2/6 into 2/3. कितना हो जाएगा बोलो? कितना? 4/18.
and Asha share gained by Chunmun, na? नहीं, Hani, sorry. Is equal to Tasha share into Tasha sacrifice in favor of Hani. तो कितना हो जाएगा 1/6 into 1/3. तो कितना हो जाएगा रे? काय झालं? कसं काय 2/6? हाँ 2/6. Yes. Sorry. Mistake on my part. 2/6 into 1/3 मतलब किती झालं रे? 2/18. Next. Therefore, the new ratio is equal to old ratio plus ना रे minus. New ratio is equal to old ratio plus gain ratio. तो पहले कौन है? दीपू जी है. दीपू दी ग्रेट. उसका पुराना रेशियो क्या था? 3/6 प्लस नया कितना आ गया अपने हीरोइन के पास? 4/18. 13/. असं माझे काय काय मुलं म्हणतात आणि बाकीचे सगळे कॉपी करतात. प्लीज डोंट कॉपी. और उसका पुराना रेशियो क्या था? 1/18 सॉरी 1/6 प्लस 2/18. So tell me what is the answer? 5/18. So 13 आणि 5 18 बरोबर टॅली झालेला आहे. पडतंय का? Therefore new ratio is equal to 13:5. आलं का सगळ्यांना? शहाणी बाळ माझी. हो गया यहाँ तक? जल्दी कीजिए. Shall I go ahead? आता नेक्स्ट क्वेश्चन करायचं आपल्याला. याच्यामध्ये भरपूर स्लाइड्स आहेत. देयर आर अराउंड 53 स्लाइड्स. चलो नाउ लेट अस कंसीडर दीज 5 डिफरेंट सिनेरियोज. आज ये 5 सिनेरियो पूरा हो गया तो आज का अपना सिलेबस खत्म. मतलब आज का मेरा टॉपिक खत्म. फिर कल से हम लोग मतलब नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस. ओके ठीक है. चलो या वी आर ऑन स्लाइड नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 1 काय म्हणतोय बघा. ए बी एंड सी आर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली. ये अच्छा नहीं है. 1/2, 3/10 एंड 1/5 में क्या प्रॉब्लम है? डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है. इसको पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर कॉमन करने का तो क्या करेंगे? एक तो सबको 2 कर दो, सबको 10 कर दो, सबको 5 कर दो. मेरे ख्याल से सबको 10 करना आसान है. सबको 10 करना आसान है तो क्या करना पड़ेगा? पहले वाले को इंटू 5 करना पड़ेगा. मतलब हो जाएगा 1/10. 5/10. दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? वो वैसे वैसे रहेगा 3/10. उसको कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है. अगर मल्टीप्लाई करने का बड़ा शौक रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करो. बराबर. उसके बाद में कौन है? 1/5. उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. तो हो जाएगा कितना? 2/10. तो रेशियो क्या है बोलो पुराना वाला उनका? ये हमेशा अपने को याद रखने का. लास्ट बेंच के तीनों बच्चे लोग हमेशा याद रखने का. जब भी रेशियो दिया जाता है तो एक बार चेक कर लेने का डिनोमिनेटर कॉमन है कि कॉमन नहीं है. कॉमन रहेगा तो देयर इज नो डिफिकल्टी. कॉमन नहीं रहेगा तो पहले डिनोमिनेटर कॉमन किया करो फिर आगे खेलो. नहीं तो गलती से लगेगा 1:3:1 रेशियो है. 1:3:1 रेशियो बराबर नहीं है. रेशियो क्या है उनका? 5:3:2 respectively. B retires from the firm and A and C decide to share the future profits and losses in the ratio of 3:2. अभी आगे क्या करने का उन्होंने बोला ही नहीं. तो क्या लिखने का? Since the question is incomplete, that's why it is not solved. Give me full marks.
बराबर ना? क्या करने का बोलो अभी इसमें? गेन रेशियो कैलकुलेट करने का। चलो फटाफट से कैलकुलेट करेंगे गेन रेशियो। लिखेंगे ओल्ड रेशियो गिवन ए बी एंड सी का हाल्फ 3/10 एंड 1/5। फिर वो जो हाल्फ 3/10 एंड 1/5 है उसको हम लोग क्या कर देंगे 5:3:2 बोल देंगे। Shall I go ahead? गेन रेशियो आ गया 1:2। मॅडम आलं का? काहीतरी भयंकर झालेलं दिसतंय। अब कर दो मैं अपने रुका हूँ। ये क्या हुआ था इधर? चल केस नंबर 2 WA, B and C चार पार्टनर्स है। Our partner sharing profits and losses in the ratio of 1/3, 1/2, 1/6, 1/3 and 1/6। तो फिर से एक बार डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, क्या हो जाएगा 2:1 2:1 रिस्पेक्टिवली। बी रिटायर्स म्हणजे थर्ड पार्टनर इज रिटायरिंग म्हणजे 2 वाला रिटायरिंग एंड WA and C डिसाइड टू शेअर फ्युचर प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इक्वली। म्हणजे नवीन रेशो काय असणार त्यांचा 1:1 असणार आहे। तो चलो गेन कैलकुलेट करो, मैं मदद नहीं करूंगा। पहले ओल्ड रेशियो लिखो। गिवन क्या है 1/3 1/6 1/3 1/6 इज इक्वल टू क्या रे 2:1 फिर न्यू रेशियो गिवन WA and C 1:1 एंड बाद में गेन रेशियो गेन कंप्लीट। Yes. 1 minute.
किती आला तुमचा गेन रेशो सांगा. Sorry? 1:1. किती सांगितलं बघा 1:1. Okay. Next part. A, B, and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 25:15:9. 25:15:9. B retires, and it is decided that profit sharing ratio between A and C will be the same as existing between B and C. Okay. A, B, and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 25:15:9. तो उसमें से B रिटायर हो रहा है, मतलब 15 वाला रिटायर हो रहा है. And it is decided that the PSR between A and C will be the same as existing between B and C. B and C के बीच में रेशियो क्या था? 15:9 था. वो अपने को भी A and C के बीच में रखने का, मतलब वो क्या रखने का? 15:9 रखने का. So old ratio is 25:15:9. New ratio is 15:9. Then gain ratio calculate करने का. Come on, big. समजलं का मला? नक्की नाही कळत तर विचारा, घाबरू नका. और कम करू 18. Shall I go ahead? किधर है आपका कैलकुलेटर? किधर है दोनों का? अपना अपना कैलकुलेटर, पेंसिल, पट्टी सब लेके आने के बाबा लोग. वन 135:225 म्हणजे 3:5. आला का सगळ्यांना? चलो, shall I go ahead? Yes. उसको सिंप्लीफाई करके 3:5 किया, बाकी कुछ सिंप्लीफाई किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक. कैलकुलेटर इज अलाउड, तो देयर इज नो डिफिकल्टी इन द एग्जाम. बड़ा बड़ा रेशियो का डिफिकल्टी 12वीं में रहता है.
सीए फाउंडेशन बड़ा रेशियो रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेटर है तो 135 to 225 is okay. There is no need to simplify. If you can do it, if you can't, then don't, no problem. Now next is case number 4. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4/9, 1/3 and 2/9. इसका मतलब रेशियो इज नॉट 4:1:2, रेशियो इज 4:3:2. B retires म्हणजे तो 3/9 वाला तो रिटायर होता है and surrenders 1/9 of his share in favor of A and remaining in favor of C. So 1/9 तो मतलब बच गया कितना, 8/9 बचेगा. तो ये किसके जैसा प्रॉब्लम है, ये अपना इधर के केस नंबर 2 जैसा प्रॉब्लम है, आरव बंता चुनमुन जैसा, के केस नंबर 3 जैसा प्रॉब्लम है, दीपू ताशा हनी जैसा. व्हाट इज योर ओपिनियन? उन्होंने जो दिया है 1/9 ऑफ हिज शेयर, 9 इज द डिनोमिनेटर विच इज मैचिंग विद द फर्म्स टोटल बीएसआर. मिला क्या आपको सबको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे कुछ तो बोलो. तो तुमको ऑलरेडी गेन दिया हुआ है, 1/9 इज द गेन ऑफ ए एंड 8/9 इज द गेन ऑफ सी. तो डायरेक्टली ऐड करना है. ये अपना आरव कौन बनता और चुनमुन जैसा प्रॉब्लम है. मिला क्या आपको सबको? नहीं समझा? अरे बोलो ना लड़की. चेहऱ्यावरती क्वेश्चन मार्क आहे, काय झालं? बोला की मॅडम, असं काय करत? The problem has already given the gain made by the continuing partners in relation to the firm. Therefore, there is no need to calculate gain ratio. समझे क्या सर? आपको कैसे समझा? उन्होंने फॉर्म के रिलेशन में दिया हुआ है, मैंने डिनोमिनेटर चेक किया 1/9 है करके, और पहले वाला क्या था? 4/9, 1/3 एंड 2/9. 1/3 मतलब अल्टीमेटली कौन था? 3/9 था. क्या रे, समझे क्या? क्लियर ना? ओके. तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? बनता का न्यू शेयर इज इक्वल टू, बनता नहीं, यहाँ पे कौन आएगा रे? ए. A's new share is equal to hold ratio plus gain. Hold ratio क्या था उसका? 4/9 था, और उसको नया कितना मिला हुआ है? 1/9 मिला हुआ है. हो जाएगा क्या? 5/9. अगर अलग है तो कैलकुलेटर फेंक दो. और बाद में सी न्यू शेयर क्या होगा? होल्ड रेशियो प्लस गेन. मतलब यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा रे? उसका पुराना रेशियो क्या था? 2/9 था, उसको मिलेगा कितना? 8/9 मिलेगा. गड़बड़ है, नहीं चलेगा. नहीं, 1/9 है ना ऑफ हिज शेयर. हाँ यस यस यस, हाँ यस, सॉरी मिस्टेक ऑन माय पार्ट. इट विल बी 2/9. सो 2/9, 3/9 में से 1/9 गया है ना, तो 2/9 बाकी रहेगा. सो हो जाएगा कितना? 4/9. Therefore, the new ratio would be 5:4. Between A and C. Here, I go ahead. 1/9 of his share and the rest of his share in C. Hmm. The 1/9 of 2/3. If he's surrendering 1/9 of his share, that he's surrendering 1/9 of 1/3 to A. 8/9 of 8/3 to C. Yes, his word आया हुआ है ना, चेंज करना पड़ेगा. Sorry for that. I'll have to change it. That is okay. वो 1/9 of his share बोला हुआ है ना, तो भले वो 9 के साथ मैच होता रहेगा ना, तो भी I cannot use that. Since the surrender of B is expressed in terms of his share, comma, the gain by other partners is calculated as follows. So A's gain is equal to B's share into B's sacrifice
इन फेवर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, बी शेयर कितना है 3/9 है इनटू हाउ मच ही हैज गिवन 1/9 दिया हुआ है, तो 3/9 इंटू 1/9 में हो जाएगा कितना 3/81. नेक्स्ट इज C's gain is equal to B's share into in favor of C. It will be 3/9 into 8/9, क्योंकि अभी तुमको उसके हिसाब से वर्किंग करना पड़ेगा ना, उसके शेयर का 1/9 उसके शेयर का 8/9 ऐसा करना पड़ेगा. क्लियर? इट गोस टू हाउ मच 24/81 अट्रिक 24. नेक्स्ट देयरफॉर new ratio is equal to old ratio plus gain ratio. ए का रेशियो क्या था 4/9 था प्लस 3/81 इज इक्वल टू 39/81. B इज इक्वल टू उसका कितना रेशियो था बी नहीं सी 2/9 प्लस 24/81 is equal to 42/81. Therefore, the new ratio is 39 is to 42. Yeah. Or 13 is to कितने 1/4. Yes. Underline the word his share. मिला क्या आपको सबको? Yes. Underline the word his share. फिफ्थ क्वेश्चन करने का मेरा बड़ा ख्वाहिश था, लेकिन आज पूरा नहीं होगा, ऑलरेडी 10:30 हो गया है. तो अगर हो सके तो फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क करने का कोशिश करो. क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ. कुठल्या फोर्थचा का फिफ्थचा? नो प्रॉब्लम, आई डू दैट. भागो बाहर, बच्चे लोग राह देख रहे हैं अपना, दूसरा क्लास का बच्चा लोग राह देख रहे हैं. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th एग्जाम.